Hello students. So today here I'm going to start one new chapter from part A, unit number 2, accounting for partnership basic concepts. This chapter is very important chapter plus interesting plus very long chapter. But before that, I've already completed unit number 1, accounting for not-for-profit organization. So today here I'm going to start unit number 2, accounting for partnership basic concepts. Students, this chapter you learn many things. In this chapter you will get many theories, concept, plus you have many practicals in this chapter. Students, after this unit number 2, you have unit number 3, that is reconstitution of partnership, that is admission of a partner. After that, unit number 4, that is retirement plus death of a partner, and unit number 5, that is dissolution of partnership firm. But if you understand this chapter, then you'll be able to understand the remaining chapters from part A, that is unit number 3, 4 and 5. So everybody try to concentrate and try to understand and try to be sincere. Okay? So let's start accounting for partnership basic concepts. What are the contents in this chapter? Try to understand, students. That is, first of all, introduction. Okay, introduction. Second will be meaning, definition and features of partnership. Then next, contents, partnership deed and its contents. Then application of the provision of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed. Then methods of maintaining capital accounts of partners, then interest on capital and interest on drawings of partners, then salary and commission to partners, interest on loan from partners, then division of profits among partners, then profit and loss appropriation account, okay, and after that guarantee of profit to a partner. Plus you have one practical, that means students, from this methods of maintaining capital accounts of partners, practical this one, interest on capital and interest on drawing, both are practical, salary and commission to partners, this is also practical, interest on loan from partners, practical, division of profits among partners, practical, profit and loss appropriation account, practical, guarantee of profits to partners, all these are practicals. Plus you have one more practical in this chapter, that is final account, final accounts of partnership, final account of partnership. Okay, so many practicals are there in this unit number 2. Okay, so today my topic will be, that is introduction, then meaning, definition and feature of partnership, then partnership deed and its contents, then application of the provision of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed. Students, video may get long, but you have to watch full video, understood, from the beginning to end, everybody, okay? And at the end of my explanation, I will leave one question for you all, and you all try to give answer in the comment box. Got it? So let's start the topic, this chapter, partnership. First of all, introduction. Student, you know that in the previous class, that is class 11, in business studies you have learned that
how many forms of business organization? So there are different form of business organization, right? You already learned in class 11 business studies subject. Different form of business organization, that is number one, sole proprietorship, right? Sole proprietorship, then sole proprietorship. Number two, that is partnership, and then that is the company. Okay, joint stock company or company, right? So this sole proprietorship already you learn in class 11. In class 12 you are going to learn this partnership and company. The company you will get that is from part B, unit number 1. Okay, but my chapter will be that is partnership. Okay, so try to understand, students. First of all, what is given here? See, the partnership form is emerge from capital and managerial limitation of sole proprietor firm. Following are the reasons for the emergence of partnership firm. Number one, the individual has sufficient funds but does not have required skill. An individual has required skill but does not have sufficient funds. Number three, to distribute business risks. More than one person, additional capital, skill and managerial ability are required to run a business at a large level and for the expansion of any business. Okay, in these circumstances, more than one person gather and become the supplement to each other and comments of a business. This form of business organization means a partnership firm. Students, you have seen that how to prepare accounts in sole proprietorship, that is in class 12, in class 11, right? How to prepare accounts in sole proprietorship. Now question arises, what is meant by sole proprietorship? कि sole proprietorship है क्या सर? Sole proprietorship means what? Single owner of the business. ठीक है, बिजनेस का एक ही ओनर होता है. जब बिजनेस का एक ही ओनर होगा, ठीक है ना, और जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस का वो सिर्फ उसी का ही होगा. ठीक, अगर लॉस भी होता है तो उसी का ही लॉस होगा. ठीक है, मैनेजमेंट भी किसको करना पड़ेगा? वो अकेला पर्सन को ही करना पड़ेगा जो बिजनेस का अकेला ओनर है. ठीक है, तो उसे सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है. सोल प्रोप्राइटरशिप मीन्स सिंगल ओनर ऑफ द बिजनेस. बट आवर चैप्टर पार्टनरशिप, राइट? तो सी, you have seen that how to prepare accounts in sole proprietorship in previous class, that is class 11. But as your business grow up, for one person it is not possible to arrange capital, and business related work or affairs alone is difficult to run the business. Now what he is required, what he wants to combine his efforts, plus he wants some more person who can join hands and invest capital. This gives rise to the partnership form of organization. कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? कहने का मतलब यही है कि देखो स्टूडेंट, पार्टनरशिप में सबसे पहले तो पार्टनरशिप जो होता है, अगर सिंगल ओनर होगा तो उसको सोल प्रोप्राइटरशिप बोला जाता है. लेकिन एक सिंगल पर्सन जब उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस को चला रहा है, रन कर रहा है, चला रहा है ना, नहीं, कुछ साल का बाद वो चाहता है कि उसका बिजनेस जो है वो थोड़ा और बड़ा करना चाहता है. उस बिजनेस को, उसका जो बिजनेस है उसका बिजनेस को बड़ा करना चाहता है. तो भी बड़ा करने के लिए उसको तो पैसा भी ज़्यादा चाहिए, मनी ज़्यादा चाहिए, कैपिटल ज़्यादा चाहिए, जो उसका पास है नहीं.
ठीक है। प्लस मैनेजमेंट का प्रॉब्लम हो रहा है, बिजनेस को मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि बिजनेस बड़ा करना है तो मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉब्लम होगा, बिजनेस को मैनेज करना भी दिकदार होगा, राइट। प्लस कुछ और लोग भी चाहिए, वो अकेला बिजनेस को तो नहीं संभाल पाएगा, अगर बिजनेस को बड़ा करना चाहता है तो अकेला वो नहीं मैनेज कर पाएगा, उसके लिए कुछ और लोग भी चाहिए, है ना नहीं। जब वो कुछ और लोग को ले लेगा अपना बिजनेस में, ठीक है, और ये बोलेगा कि आओ मेरे साथ बिजनेस करो, हम लोग एक साथ मिलकर बिजनेस करता है और मेरा बिजनेस में आप लोग पैसा भी लगाओ, कैपिटल भी लगाओ, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में हम लोग बांट लेगा, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है, या जो भी लॉस होगा वो हम लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा, ठीक है। तो इसी को ही पार्टनरशिप बोला जाता है, अंडरस्टूड। तो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग and definition of partnership. Partnership is a form of business organization. Yes, partnership is a form of what? Business organization, right? Where two or more persons join hands to run a business and they share the profits and losses according to the agreement amongst them. पार्टनरशिप एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म है जहाँ में टू या टू से मोर पर्सन अगर एक साथ मिलकर बिजनेस को चलाता है, ठीक है, और जो भी प्रॉफिट है या लॉसेस है वो अगर शेयर करता है अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट अमंग्स देम, उन लोगों का बीच में कुछ ना कुछ तो एग्रीमेंट हुआ होगा, उस एग्रीमेंट का हिसाब से, ठीक है, जो भी प्रॉफिट या लॉसेस होगा वो आपस में क्या कर लेगा, शेयर कर लेगा। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट? पार्टनरशिप। याद रखो स्टूडेंट्स, कम से कम पार्टनरशिप में बिजनेस करने के लिए दो लोगों का जरूरत है, टू पर्सन, ठीक है। नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 define partnership as the partnership is relation between person who have agreed to share the profit of a business carried on by all or any of them acting for all. देखो स्टूडेंट, हर एक चीज़ का कानून होता है, लॉ होता है, ठीक है ना। इसी तरह पार्टनरशिप का भी एक कानून है, ठीक है, पार्टनरशिप का भी एक क्या है, कानून है, एक्ट है, लॉ है। तो पार्टनरशिप का भी कानून बनाया गया कब? 1932 को, ठीक है। जब 1932 को पार्टनरशिप एक्ट को बनाया गया तो पार्टनरशिप का एक डेफिनेशन दिया गया है। क्या डेफिनेशन है? पार्टनरशिप इज रिलेशन। पार्टनरशिप क्या है? एक रिलेशन है, किसका बीच में? पर्सन का बीच में, लोगों का बीच में, जो हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, जो लोग उन जो भी बिजनेस में प्रॉफिट होगा वो शेयर करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। इसको अच्छा से और समझेगा हम लोग, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। नेक्स्ट, द पर्सन हु एंटर इनटू सच रिलेशनशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स एंड द पार्टनर्स हु कैरी ऑन द बिजनेस आर कलेक्टिवली नॉन एज फर्म। पार्टनर्स मीन्स व्हाट? पार्टनर्स का मतलब क्या है? जो ओनर है, हर एक ओनर को बिजनेस में, जैसे मान लो ABC, तीन पर्सन है, 3 पर्सन है, A, एक B और C, ये 3 पर्सन है और तीनों मिलकर बिजनेस को चलाता है, तो तीनों भी बिजनेस का मालिक है। तो हर एक इंडिविजुअल को बोला जाएगा, मालिक को बोला जाएगा पार्टनर। क्या बोला जाएगा? पार्टनर बोला जाएगा। एंड द पार्टनर हु कैरी ऑन द बिजनेस आर कलेक्टिवली नॉन एज फर्म। और जब पार्टनर एक साथ मिलकर बिजनेस को चलाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? फर्म, ठीक है। इसका बाद नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द नेम अंडर which द बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड फर्म नेम। इसका मतलब है बिजनेस को आप जो बिजनेस जिस नाम का अंडर में आप चला रहे हो, है ना, उसे क्या बोला जाता है? फर्म नेम बोला जाता है, ठीक है। यू कैन से ऑल्सो लाइक दैट द बिजनेस रन कलेक्टिवली इन पार्टनरशिप by 2 or more person is known as partnership firm.
ओके, तो आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप का एक्ट कब बनाया गया, पार्टनरशिप का मीनिंग क्या है, पार्टनरशिप का डेफिनेशन क्या दिया, पार्टनर्स का मीनिंग क्या है, फार्म का मीनिंग क्या है, फार्म नेम क्या होता है, राइट। जो डेफिनेशन मैंने पढ़ाया था अभी, है ना स्टूडेंट्स, तो इसी डेफिनेशन को मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, our first characteristic, what is that? Relationship, that is agreement. स्टूडेंट्स, आप जब डेफिनेशन पढ़ा था सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज रिलेशन, बोला है ना, नहीं रिलेशन या रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप का मतलब है एग्रीमेंट। व्हाट डज इट मीन? ए पार्टनरशिप इज फॉर्म बाय एन एग्रीमेंट। देखो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप जो बनता है ना, वो एग्रीमेंट से ही बनता है, एग्रीमेंट से ही पार्टनरशिप बनाया जाता है, ठीक है। क्या है वो एग्रीमेंट, वो भी हम लोग डिस्कस करेगा, डोंट वरी फॉर दैट, ओके। द एग्रीमेंट मे बी आइदर ऑरल और इन राइटिंग। अब जो एग्रीमेंट होगा ना, वो एग्रीमेंट ऑरल भी हो सकता है और राइटिंग में भी हो सकता है, ठीक है। इट डिफाइंस द रिलेशनशिप बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू कैरी ऑन बिजनेस। It may contain the terms sharing profit and capital to be invested by each partner etc. ठीक है, इसका मतलब है आप जो एग्रीमेंट, यहाँ में जो एग्रीमेंट का बात किया जा रहा है, उस एग्रीमेंट में क्या क्या होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होगा, ठीक है। तो उसमें, उस एग्रीमेंट में प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में लिखा होगा, कैपिटल किसको कितना इन्वेस्ट करना है उसका बारे में लिखा होगा एक्सेट्रा, ठीक है। The written document is the written agreement is known as partnership deed। अभी देखो स्टूडेंट, एक एग्रीमेंट होता है ओरल में और एक एग्रीमेंट होता है राइटिंग में, ठीक है। तो जो राइटिंग में जो एग्रीमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, उसी को ना डीड बोला जाता है, DWD, डीड। डीड का मतलब है एग्रीमेंट, लेकिन वो एग्रीमेंट राइटिंग में होना चाहिए, ठीक है, तभी इसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। अंडरस्टूड? ओके, तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गया, जो डेफिनेशन में भी दिया हुआ था रिलेशन के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज पर्सन। पर्सन, अभी डेफिनेशन में क्या दिया हुआ था? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन, पर्सन था ना, तो पर्सन मीन्स व्हाट? देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2 पर्सन टू फॉर्म ए पार्टनरशिप। अगर आपको पार्टनरशिप में बिजनेस करना है तो कम से कम 2 पर्सन होना चाहिए, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप कैन बी 50 अकॉर्डिंग टू द कंपनी एक्ट 2013। अभी देखो स्टूडेंट्स, मिनिमम कितना पर्सन होना चाहिए पार्टनरशिप के लिए? 2 पर्सन। और मैक्सिमम पार्टनरशिप में कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। लेकिन अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013, आप लोगों ने कंपनी एक्ट 2013 जो पार्ट बी में है, कंपनी शेयर से रिलेटेड है ना, उस चैप्टर को आपने पढ़ा होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल किया होगा। तो कंपनी का भी कानून होता है, तो वो कानून कब बनाया गया? 2013 में बनाया गया, ठीक है। तो कंपनी क्या बोल रहा है, कंपनी एक्ट 2013 क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो मैक्सिमम कितना पर्सन होना होगा? 50%, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट स्टूडेंट्स। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स is not specified. Remember, the maximum number of partners is not specified or prescribed in the Indian Partnership Act 1932। बात समझ लेना, पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स का बात किया नहीं गया है, वो हमें स्पेसिफाइड नहीं किया गया, वो हमें प्रेस्क्राइब नहीं किया गया है। किसने बोला? कंपनी एक्ट 2013 ने बोला कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होना चाहिए? 50 होना चाहिए। अंडरस्टूड? बट द इंडियन पार्टनरशिप बट द इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 specifies the maximum number of partners, okay, as per section 464 subsection 1 of the Indian Companies Act 2013, no association or
partnership consisting of more than such number of person as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business, provided that the number of persons which may be prescribed under this subsection shall not exceed 100. But Rule 10 of Companies, that is 2014, specify the limit as 50. Thus, the maximum number of partner in a partnership firm is 50. बात समझ में आया? कंपनी एक पहले बोला था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा पार्टनरशिप में 100, लेकिन बाद में इसको चेंज कर दिया गया है और बोला है कि 50. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा? 50 होगा. लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ने कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं किया कि कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होगा. ठीक है, ये तो कंपनी एक्ट 2013 ने कहा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितना होगा? 50 होगा. दैट यू रिमेंबर स्टूडेंट्स. ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, शेयरिंग प्रॉफिट्स. अभी देखो स्टूडेंट, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था, फिर से मैं याद दिला रहा हूँ. कंपनी दैट इज क्या था? सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, राइट? पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profits. share the profits के बारे में बोला था, right? The partners agree to share profits in the agreed ratio. इसका मतलब है बिजनेस में तो प्रॉफिट होगा या कभी लॉस भी हो सकता है. बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट कुछ रेशियो से इसको डिवाइड कर दिया जाएगा. जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है ना, और मान लो प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज़, तो दोनों ने डिसाइड किया कि इक्वली डिवाइड कर लेगा 1:1 में, तो इसे एग्रीड रेशियो बोला जाता है. ठीक है, या तो कुछ और रेशियो से जो भी प्रॉफिट होगा उसको डिवाइड कर दिया जाएगा. ठीक है. इन केस ऑफ लॉस ऑल द पार्टनर्स हैव टू बियर इट इन द सेम एग्रीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. और अगर लॉस हो जाता है तो उसी तरह आप उस लॉस को भी डिवाइड करोगे पार्टनर्स का बीच में. ठीक है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट दैट इज गिवन बिजनेस. डेफिनेशन में क्या लिखा था? शेयरिंग प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस, राइट? बिजनेस के बारे में बोला था. तो व्हाट डज इट मीन? द पार्टनरशिप इज फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस विद द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स. यस, आप अगर कोई भी बिजनेस करना चाहते हो तो बिजनेस क्यों करना चाहते हो? प्रॉफिट कमाने के लिए, राइट? द बिजनेस शुड बी लॉफुल. बिजनेस कैसा होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए, कानूनन बिजनेस होना चाहिए, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए. बात समझ में आया? इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए. जो कानूनन बिजनेस है वही बिजनेस का बात यहाँ में किया जा रहा है. तो दस इफ 2 or more person agree to carry on unlawful activities it will not be termed as partnership. अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक साथ मिलकर काम करता है और जो काम कर रहा है वो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ हो रहा है, मतलब इलीगल काम हो रहा है, तो उसे पार्टनरशिप नहीं कहा जाएगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट इज म्यूचुअल एजेंसी. ट्राई टू अंडरस्टैंड म्यूचुअल एजेंसी. अभी स्टूडेंट फिर से मैं डेफिनेशन को याद दिलाता हूँ. पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. ये जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल है, इसका जो एक्चुअल मीनिंग है म्यूचुअल एजेंसी. इसे म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है स्टूडेंट्स. ठीक है, ए म्यूचुअल एजेंसी. व्हाट डज इट मीन? ट्राई टू अंडरस्टैंड. एवरी पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द अदर पार्टनर. देखो स्टूडेंट्स, पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर जो है एक दूसरे का ना एजेंट होता है. ठीक है, एक दूसरे का बात मानना पड़ता है. ठीक है. एवरी पार्टनर कैन बाइंड द फर्म एंड ऑल अदर पार्टनर्स बाय हिज और हर एक्ट्स एंड ईच पार्टनर विल बी रेस्पॉन्सिबल एंड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स. कहने का मतलब क्या है? एक पार्टनर जो भी काम करेगा दूसरा पार्टनर भी रिस्पॉन्सिबल होगा, लायबल होगा. ठीक है, क्योंकि ये पार्टनरशिप है, इसमें एग्रीमेंट हुआ है, उसका अकॉर्डिंग आपको बिजनेस को रन करना है. ठीक है. तो यहाँ में जो कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का बात किया गया है. कैरिड ऑन बाय ऑल का मतलब है कि हम लोग सब एक साथ मिलकर बिजनेस को चलाएगा, इसे बोला जाता है कैरिड ऑन बाय ऑल.
और एक लिखा था एक्टिंग फॉर ऑल, राइट। इसका मतलब है कि जैसा मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है, ठीक है। 3 पार्टनर मिलकर अगर बिजनेस को चलाता है तो इसे बोला जाता है कैरी डाउन बाय ऑल, ठीक है। और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल का मतलब है कि 3 पार्टनर में से मान लो कोई एक पार्टनर ने बर्डन ले लिया और एक पार्टनर बाकी पार्टनर का बिहेव में बिजनेस को रन कर रहा है, ठीक है। तो उसे क्या बोला जाता है, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, तो इसे ही म्यूचुअल एजेंसी बोला जाता है। अंडरस्टूड। तो these are the characteristics of partnership. Okay, I hope everybody understand. Next, try to understand what is that unlimited liability. अभी ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या होता है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, पार्टनर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू पे बिजनेस ऑब्लिगेशन फ्रॉम देयर पर्सनल प्रॉपर्टी when the firm does not have sufficient assets to pay liabilities of the business. Every partner individually and collectively is responsible to the partnership firm. Therefore, the liability of each partner is unlimited. कहने का मतलब क्या है, देखो स्टूडेंट्स, कि अगर आपको कुछ भी लाइबिलिटी पे करना हो और अगर वो शॉर्ट हो जाता है, आपका लॉस हो गया, सपोज आपका बिजनेस में पैसा नहीं है, आपका पास एसेट्स नहीं है कि आप एसेट्स को बेच के लाइबिलिटी पे कर दो, ठीक है ना। जैसे मान लो आप बैंक से लोन लिया, ठीक है, बैंक से आपने लोन लिया, मान लो 50 करोड़ आपने लिया, 50 करोड़ आपने लोन लिया, ठीक है, या मान लो 20 करोड़ आपने लोन लिया, तो अभी ये 20 करोड़ तो आपको पे करना पड़ेगा, दैट इज़ योर लाइबिलिटी। लेकिन हुआ क्या स्टूडेंट्स, कि आप ये 20 करोड़ या जो भी आपने जितना भी अमाउंट लिया लोन एज लोन, वो आप पे नहीं कर पा रहे हो। आप अगर बिजनेस के एसेट्स भी बेच देते हो तब भी आपका पैसा उतना नहीं हो रहा है, आप क्या करोगे, तब आपका जो प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी, उसको बेच के भी आपको लाइबिलिटी पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अंडरस्टूड? ओके, तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. Next topic, try to understand, that is partnership deed and its contents. The partnership, already I have given explanation कि agreement forms the basis of partnership. मैंने पहले ही बोला है कि पार्टनरशिप जो बनता है ना, वो एग्रीमेंट से बनता है. The written form of the agreement, which is a document of partnership, it contains terms and conditions regarding the conduct of the business. It also explains relationship between the partners. This document is called partnership deed. Okay, आप जो भी एग्रीमेंट करते हो, ठीक है ना, पार्टनरशिप को फॉर्म करने के लिए आप जो भी एग्रीमेंट करते हो, उसी एग्रीमेंट में बहुत सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा जाता है, ठीक है, बहुत सारा शर्तें लिखा जाता है, ठीक है ना. ओके, तो उससे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड. उसी डॉक्यूमेंट को क्या बोला जाता है, पार्टनरशिप डीड बोला जाता है. या आप ऐसे भी समझ सकते हो कि पार्टनरशिप डीड इज अ डॉक्यूमेंट in writing that contains the terms of the agreement among the partners. It is not compulsory for a partnership to have a partnership deed as per the Indian Partnership Act 1932, but it is desirable to have a partnership deed as it serves as an evidence of the terms of the agreement among the partners. अगर आपका पास written document हो तो एक evidence हो जाता है, proof हो जाता है ना, तो इसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है. ओके, तो अभी वो जो एग्रीमेंट है, वो क्या क्या एग्रीमेंट है, ठीक है, वो एग्रीमेंट को समझता है. दिस आर कॉल्ड कंटेंट्स और क्लोजेस ऑफ द पार्टनरशिप डीड. वो कौन कौन सा एग्रीमेंट होता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स. डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स, द इंफॉर्मेशन अबाउट नेम, एड्रेस एंड अदर डिटेल्स ऑफ पार्टनर्स इज इंक्लूडेड. कि पार्टनर का नाम क्या है, पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, ठीक है ना, ये सब डिटेल्स लिखा जाता है. ओके, उस एग्रीमेंट में. नेक्स्ट, डिटेल्स ऑफ फर्म, द इंफॉर्मेशन लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म इंक्लूडेड. कि आप जो बिजनेस कर रहे हो, उस बिजनेस का नाम क्या है, उस बिजनेस का एड्रेस क्या है, उस एग्रीमेंट में लिखा जाता है, ठीक है. टाइप ऑफ बिजनेस, द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइप ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो इंक्लूडेड, कि आप कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हो, ठीक है. नेक्स्ट इज कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप. द इंफॉर्मेशन अबाउट द कमेंसमेंट डेट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज ऑल्सो कवर्ड इन द डीड. उस एग्रीमेंट में ये भी लिखा जाता है कि आप किस दिन बिजनेस को स्टार्ट किया, ठीक है, वो कौन सा डेट है, ठीक है, उस डेट को भी लिखा जाता है एग्रीमेंट में. नेक्स्ट एग्रीमेंट क्या है, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि हर एक पार्टनर कितना करके कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है.
नेक्स्ट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स के बीच में वो कौन से रेशियो से डिवाइड होगा, इसके बारे में लिखा जाता है। ओके। नेक्स्ट अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स अलाउड टू ईच पार्टनर। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट्स कि आपको बिजनेस से पैसा विड्रॉ करना पड़ता है पर्सनल यूज़ के लिए, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्रॉइंग्स। तो आप अगर बिजनेस से पैसा निकालना चाहते हो पर्सनल यूज़ के लिए तो आप कितना करके निकाल सकते हो, कितना करके विड्रॉ कर सकते हो, उसका बारे में भी एग्रीमेंट में लिखा जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट टू बी अलाउड ऑन कैपिटल एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऑफ पार्टनर्स। और इस एग्रीमेंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बारे में भी बोला जाता है कि कितना रेट होगा। हाँ, एक ओनर जब बिजनेस में कैपिटल लगाता है तो उसका बदले में जो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, एक बिजनेस जो मालिक को जो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट पे करेगा वो कितना परसेंट होगा, ठीक है, उसका रेट कितना होगा, इसका बारे में भी एग्रीमेंट में लिखा जाता है। या आपने जो विड्रॉ किया पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा, ठीक है ना, उसका बदले में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है उस ड्राइंग के ऊपर, तो उसका बारे में भी लिखा जाता है एग्रीमेंट में, ठीक है। देन अमाउंट ऑफ सैलरी टू बी अलाउड टू एनी पार्टनर। अगर किसी पार्टनर को सैलरी दिया जाएगा तो कितना अमाउंट दिया जाएगा, इसका बारे में एग्रीमेंट में लिखा जाता है। ओके। देन रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय पार्टनर्स एक्सेट्रा, कि अगर जो इंटरेस्ट ऑन लोन है उस इंटरेस्ट ऑन लोन के ऊपर कितना रेट लगेगा, ठीक है, कोई पार्टनर अगर लोन लेता है, ठीक है ना, बिजनेस से, ठीक है, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा बिजनेस को, इसके बारे में भी एग्रीमेंट में लिखा जाता है। तो दीज आर द कंटेंट्स और क्लोजेस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड। दिस इज द लास्ट टॉपिक। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड application of the provision of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed. Partnership deed means you know that the written document, the written agreement, right? The written agreement is known as partnership deed. ठीक है ना, आप उस एग्रीमेंट में जो जो कुछ भी लिखते हो, ठीक है ना, उसे पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। बट अगर आप ऐसा बिजनेस कर रहे हो कि जहाँ में एग्रीमेंट, ऐसा कुछ एग्रीमेंट है जो जिसको बनाया ही नहीं है आपने, ठीक है, जिसको आप एग्रीमेंट में इंक्लूड किया ही नहीं है, तब क्या होगा। ओके, एग्जाम्पल लाइक देखो यहाँ में एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। इसका मतलब है अगर आपका एग्रीमेंट साइलेंट हो तब क्या होगा, उसका प्रोविजन क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पॉइंट, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर्स, दैट इज नो सैलरी और रेम्यूनरेशन इज अलाउड टू एनी पार्टनर, सेक्शन 13 सबसेक्शन ए। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अगर उस एग्रीमेंट में सैलरी का बारे में या रेम्यूनरेशन का बारे में या कमीशन का बारे में कुछ भी ना लिखा हो तो फिर किसी भी पार्टनर को सैलरी नहीं मिलेगा या रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा। दैट यू रिमेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अभी देखो स्टूडेंट, जैसा बिजनेस में 100 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना, तो अभी डिसाइड किया कि सपोज ए और बी दो पार्टनर है, तो वहाँ में ए और बी का बीच में जो एग्रीमेंट हुआ कि सपोज कि 3:2, सपोज 3:2 में प्रॉफिट को डिवाइड किया जाएगा दोनों पार्टनर का बीच में। तो 3:2 का मतलब है कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3 भाग पहला पार्टनर को मिलेगा और बाकी दूसरा पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल लाइक 3:2, इसका मतलब है 3/5 इंटू कितना, 3/5 इंटू 100। सपोज 100 रुपीज़ प्रॉफिट होता है, 5 2 10 0। इसका मतलब है पार्टनर ए को 60 रुपीज़ प्रॉफिट मिलेगा और 40 रुपीज़ पार्टनर बी को मिलेगा, ठीक है। सपोज एग्रीमेंट ऐसा बना है 3:2 या कुछ और भी रेशियो, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर कुछ भी रेशियो के बारे में, कुछ भी प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में एग्रीमेंट में ना लिखा हो तो फिर ये मान के चलना पड़ेगा कि प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय द पार्टनर्स इक्वली, सेक्शन 13 सबसेक्शन बी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में एग्रीमेंट में ना लिखा हो, अगर साइलेंट हो, एब्सेंट हो, तब हमेशा जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट पार्टनर के बीच में इक्वली डिवाइड होगा।
ठीक है, इक्वली डिवाइड होगा. दैट यू रिमेंबर, दिस ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. पॉइंट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अभी देखो, जब पार्टनर बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस बदले में पार्टनर को क्या देगा? इंटरेस्ट देगा. ठीक है. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का बारे में एग्रीमेंट में ना लिखा हो तो क्या होगा? अगर साइलेंट हो तो क्या होगा? एब्सेंट हो तो क्या होगा? द नो इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन द कैपिटल. तो उस कैपिटल के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा. Where a partner is entitled to interest on capital contributed as per partnership deed, such interest on capital will be payable only out of profits, that is section 13 subsection C. कहने का मतलब क्या है कि अगर बिजनेस में प्रॉफिट होता है तभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा. अगर लॉस होता है तो फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. ठीक है, दैट यू रिमेंबर. पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन लोन एडवांस बाय पार्टनर्स टू द फर्म. अगर कोई भी पार्टनर एडवांस में लोन लेता है तो क्या करना पड़ेगा? पार्टनर्स को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा लोन के ऊपर बिजनेस को. राइट, ठीक है ना. तो अगर इसका बारे में कि कितना इंटरेस्ट लोन के ऊपर पे करना पड़ेगा बिजनेस को, अगर ये मेंशन ना किया गया हो पार्टनरशिप एक डीड में, ठीक है, तब that always you remember interest on loan is to be allowed at the rate of 6% per annum. 6% per annum section 13 subsection D. कहने का मतलब है कि अगर इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट पार्टनरशिप डीड में मेंशन ना किया गया हो तो फिर आप हमेशा 6% इंटरेस्ट बिजनेस को पे करोगे. मतलब बिजनेस पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन लोन 6% चार्ज करेगा. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर ऑल दिस आर पॉइंट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. अभी देखो स्टूडेंट्स, पार्टनर कभी कभी क्या करता है कि बिजनेस से क्या करता है? पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए. तो उसे क्या बोला जाता है? ड्राइंग्स. तो अगर कोई भी पार्टनर पैसा विड्रॉ करता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसका ऊपर बिजनेस इंटरेस्ट चार्ज करता है. ठीक है. अगर वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एग्रीमेंट में मेंशन ना किया गया है या एब्सेंट है या साइलेंट है, कुछ भी बोला नहीं है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में एग्रीमेंट में, तब नो इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द ड्राइंग ऑफ द पार्टनर्स. तब कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा ड्राइंग्स का ऊपर बिजनेस. ओके. So these are the 5 points about application of the provision of the Indian Partnership Act 1932 in the absence of partnership deed. Okay, I hope this much you understand. Okay, this is very long chapter. Okay, so after this you will get the practicals, because many practicals are there in this unit number 2. Okay, so you understood the meaning of partnership. Okay, that means what is meant by partnership? When two or more person join together to form a business to share the profit or loss, okay, arising therefrom in an agreed ratio, the relationship among them is called partnership. Okay, and the business may be carried on by all or any of them acting for all. ठीक है. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप. नाउ, जैसा मैंने बोला था कि लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को मैं पूछूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज देना. ठीक है. क्वेश्चन ऐसा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कितना होता है? ठीक है. कितना पार्टनर्स, मैक्सिमम कितना पार्टनर्स होगा अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932? माय क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टैंड. मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट 1932. Okay, that you have to give answer in the comment box. Okay,
So okay then, thank you for today, and the remaining part I will explain later on. Okay, thank you for today.